I'm doing previous year question from exams like GATE, IAS and IAS, and the subject is material science. Okay, so I've already completed around 10 lectures for this. Today is the 11th one. Okay, so this is about myself. So let us start today's questions. Okay, so the today's question is from alloying element of steel and alloy steel. And alloy steel. Okay, let's read that. Alloy steel, which is work hardenable and which is used to make the blade of bulldozer, bucket wheel, excavator, and other earth moving equipment contain iron carbon. Okay, so in this case, the chromium, silicon, manganese and magnesium. Okay, so which alloying element we have to add that? It is actually manganese, sorry. Okay, so its answer is C. Next, the alloy steel designated as 40 chromium, 80 nickel and 2 by Bureau of Indian Standard contains, okay, so it's a 4% carbon, 18% chromium, 2% nickel, 4% carbon, 1.8% carbon, 0.2% nickel, 4.4% carbon. Okay, this is 0.4% carbon, 1.8% chromium, 2% nickel, 0.4% nickel, 1.8% chromium, 0.2% nickel. It is actually A. 0.4% carbon, 18% chromium and 2% nickel. Okay, remember it is carbon percent will be less. Okay, 4% तो नहीं होगा. Okay, so this will not be the answer. Okay, and 1.8% chromium नहीं होगा. It will be 18%. So ये गलत होगा, ये गलत होगा. Okay, ये भी गलत होगा. इसमें 1.8 तो 18% chromium होगा. Its answer is C. I mean, sorry, A. तो अगर आपको पता है कि 18% chromium है, ओके, देखिए यहीं से पता चल जा रहा है हमें 18% क्रोमियम 18, सो इट इज 18, तो हमारे बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे. ओके, assertion reason question. In a high speed steel, alloying element tungsten, chromium and vanadium are added to make them suitable work at higher speed. Then tool steel or low alloy steel. Okay, vanadium added to the property to red harden, and tungsten and chromium add to high wear resistant. Okay, so let's देखिए एक्चुअली में ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि देखिए in high speed steel, alloying element tungsten, chromium and vanadium are added to make suitable work at higher speed, and tool steel are low alloy steel. Yes, ये absolutely correct है. ओके, स्टेटमेंट सीधा सीधा वो चीज़ बोल रहा है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. Vanadium adds to the property red hardness and tungsten and chromium add to high wear resistance. Yes, ये तो इसी चीज़ के लिए एलाइन, ये दोनों को इसमें ऐड किया जाता है, एलाइन एलिमेंट को इसमें डाला जाता है. ओके, सो दैट्स वाई, और ये चीज़ इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. ओके, सो दैट्स वाई द आंसर इज ए. ओके, इसमें मैच लिस्ट करना है हमें. इनवेट, हैटफील्ड स्टील, सैटेलाइट, स्टेनलेस स्टील, ओके, मैग्नीज, क्रोमियम, निकल, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम. ओके, सो मैच देखिए, इनवेट जो होता है इट इज निकल, इट विल मैच विद निकल. हैटफील्ड इट इज मैच विद मैग्नीज, एंड सैटेलाइट it is met with molybdenum, and stainless steel it is met with chromium. Okay, so its answer will be D. ओके, देखिए अगर आपको पता है ये चीज़ तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसी क्वेश्चन में आप याद कर लो. मटेरियल साइंस हुए, ये सब चीज़ें जो फैक्चुअल चीज़ें हैं ऐसे याद होती हैं. आप बुक उठा के पढ़ोगे तो वो उतना याद नहीं कर पाओगे. You try to memorize from the question itself. Okay, आप यहाँ से याद कर लो, that's it. ये आपको कहीं पे भी MCQs में या फिर मैच लिस्ट में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ये हेल्प करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए alloying element for tool steel improve mechanical properties. Okay, तो कार्बन, मैग्नीज,
क्रोमियम, वेनेडियम, हार्डनेस, हॉट हार्डनेस, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, टफनेस। ओके, सो लेट्स देखिए ये ऐड करेंगे तो क्या क्या चीज़ें बढ़ेंगी, कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी, यही ये बोलते हैं। देखिए कार्बन जब आप ऐड करते हो, ओके, तो कार्बन आप ऐड करोगे इट विल इम्प्रूव द हार्डनेस। मैग्नीशियम ऐड करने से टफनेस बढ़ती है, ओके, और क्रोमियम ऐड करने से लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ओके, और वैनेडियम ऐड करने से हॉट हार्डनेस होती है। ओके, आंसर इज सी। नेक्स्ट फिर से आ गया वही मैच लिस्ट करना है हमें। वैनेडियम, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, क्रोमियम, so increase endurance in strength, improve creep properties, improve hardness, increase resistance to higher temperature oxidation। okay, देखिए इसमें जैसे जैसे दिया वैसे वैसे ही मैच कर रहा है। ओके, वैनेडियम इट विल इंक्रीज द एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, मोलिब्डेनम इट विल improve the creep property, silicon increase the hardness, and chromium increase the रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन। ओके, सो कोरोजन वगैरह नहीं होता है इसको अगर क्रोमियम ऐड करते हैं तो। सो द आंसर इज डी। ठीक है, 1 2 3 4। फिर से ऑब्वियसली हम लोग एलिमेंट वाले चैप्टर को कर रहे हैं तो विल गेट क्वेश्चन ऑफ दैट काइंड। ओके, सो निकल, क्रोमियम, टंगस्टन, सिलिकॉन। अच्छा भी है ना चीज़ कि बार बार रिपीट हो रही है। कोरोजन रेजिस्टेंट, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, हीट रेजिस्टेंस, हार्डनेबिलिटी। ओके, सो देखिए क्रोमियम तो कोरोजन रेजिस्टेंट होगा, ओके, तो सबको पता है। ओके, सो द फर्स्ट इज मैचिंग विद बी, फर्स्ट इज मैचिंग विद बी, फर्स्ट इज मैचिंग विद बी। देखिए सी और डी तो खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें फर्स्ट इज मैचिंग विद बी, फर्स्ट इज मैचिंग विद बी। ओके, निकल, निकल जो होता है हार्डनेबिलिटी बढ़ाता है, ओके, दोनों में है। और देखिए टंगस्टन, टंगस्टन जो जो करता है ये इट इज हीट रेजिस्टेंट। ओके, एंड सिलिकॉन प्रोवाइड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, देखिए आप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वाला पार्ट में आप जाके वहाँ से दिमाग लगा सकते हो। इट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी। सो इट्स आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Austenitic stainless steel contains 18% chromium and 8% nickel. Since it retained its austenitic structure at room temperature, it is called austenitic stainless steel. Okay. Chromium present in the steel improves corrosion resistance by forming thin film of chromium oxide on the surface. Yes, both is correct and correct explanation भी है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ओके, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाला नहीं है, जो स्टेटमेंट लिखा वही सही है। नेक्स्ट 18/8% स्टेनलेस स्टील कंटेन 18% स्टेनलेस स्टील, 8% क्रोमियम, 18% क्रोमियम, 8% निकल, 18% टंगस्टन, 8% निकल, 18% टंगस्टन, 8% क्रोमियम। ओके, सो इट इज एक्चुअली बी, 18% क्रोमियम, 8% निकल। ओके, 18% क्रोमियम, 8% निकल। Next question, material structure. Okay, charcoal, graphite, chromium, copper. Okay, FCC, HCP, amorphous, BCC करते हैं। देखिए चारकोल जो होता है इट इज HCP, ग्रेफाइट जो होता है इट इज amorphous, क्रोमियम जो होता है इट इज BCC, okay, and copper it is FCC. Okay, copper it is FCC, तो आंसर इज सी। देखिए अगर आपको एक पता है कॉपर, कॉपर अगर FCC पता है इट इज मैचिंग विद 1, तो देखिए आपके दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके, 1 इसमें है 1 इसमें है, तो आपका ए ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया, तो एक से ही दो ऑप्शन आपको एलिमिनेट हो गया, बाकी आप बाकी को मैच करा के आप आंसर निकाल सकते हो। ओके, सो मैच लिस्ट वाला क्वेश्चन आप इस तरीके से करो, पहले आपको जो पता है उससे आप एलिमिनेट करो ऑप्शन, फिर
नेक्स्ट को देखो कौन सा आपका पता है, उससे जो आएगा वही होगा। मोस्ट ऑफ टाइम हो जाता है, एक आध बार ऐसा होता है कि नहीं होता है। ओके, लाइक दैट यू कैन सॉल्व द match this kind of problem. Okay, so for this question the answer is C. Okay, one more question I think. Babbitt invert gunmetal duralium. Duralumin, not duralium. Okay, nickel, tin, lead, aluminium, copper. Okay, तो किसमें कौन सा होता है? So let's see that. Okay, Babbitt is tin and lead. Inver is nickel. Okay, gunmetal, it is copper, and duralumin is aluminium. Okay, so answer is C. इसको पढ़ लेते हैं. Babbitt 18% lead, 5% tin, 10% antimony and 0.5% carbon. Okay, Inver में 64% iron, 36% nickel. C gunmetal हो गया. Duralumin में होता है aluminium 95%, copper 4%. अदर जो होते हैं सिलिकॉन, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, इट इज 2%. ओके, सो यहाँ से आप आराम से मैच करा सकते हैं किसमें कौन सा अलग एलिमेंट होता है. ओके, सो इट्स आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोनल मेटल इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, कॉपर एंड जिंक, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, कॉपर एंड निकल. is actually D, copper and nickel. Okay, monal metal में copper and nickel होता है. So monal metal is an alloy of nickel 63 to 67% and 30%. Rest 30% is copper. Okay, so this was the end of today's questions of material science. Thank you for watching. Bye bye.